اللہ پاک کے نام سے ابتدا جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصائی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصائی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبدی مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم تھے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاج نے بند کر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار اور بیتو اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیتو اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاج بن عمر تھا، وہ اچھا ادمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیتو اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زیر وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو بند کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاں نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاں اور قصائی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ قصائی کے بعد حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برا کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، کہ بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوہ ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہوا تھا اور ایک کوہ ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب وہاں کدال لے کر کھدائی کرنے لگے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم
हम तुम्हें यहाँ खदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे उन दोनों बतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना उन्हें देना, मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज उन्हें वाले नहीं तो रुक गए और फिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर उन्हें लगे। ये देखकर उन्होंने कहा, अल्लाह अकबर, और फिर पकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने यह देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम उसमें तुम्हारी शरीक होंगे। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तो फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्न अजीम की काहना से फैसला करवाना मंजूर किया। ये काहना मलक शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर हजरत अब्दुल मुत्तलब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलब के साथ अब्दी मनाफ के लोगों की एक जमायत थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमायत साथ थी। इस जमाने में मल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था, वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा अबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मुश्की से भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, ओ, तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगी, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अब्दुल मुत्तलब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चनांचा सब लोग वापस लौटे। वापस कर हजरत अब्दुल मुत्तलब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल व दौलत, तलवारें और जरें निकल आए। इनमें सोना और चांदी वगैरह भी था। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने अधेरा। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। ओ इंसों के तेरों से करा डाले। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए। 2 हजरत अब्दुल मुत्तलब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के पास अब फेंका गया तो माल व दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और ज़ेरें हजरत अब्दुल मुत्तलब और कुरैशियों के नाम जो तीर थे वो किसी चीज पर न निकले। इस तरह फैसला हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, उसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़ब्ह करूंगा। अब जबकि कुआं निकल या तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मंत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़ब्ह करो। नाज़रीन, हजरत अब्दुल मुत्तलब को यह हुक्म इस वक्त दिया गया जब वो अपनी मंत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मंत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़ब्ह करके गरीबों को खुला दिया। फिर ख्वाब आया, उससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बेल ज़ब्ह कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, उससे भी बड़ी कुर्बानी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़ब्ह किया। फिर ख्वाब आया, ए अब्दुल मुत्तलब, उससे भी बड़ी चीज पेश करो। उन्होंने पूछा, उससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया, ए अब्दुल मुत्तलब,
अपने बेटों में से किसी को ज़बह करो जैसा कि तुमने मंत मानी थी। अब इन्हें अपनी मंत याद आई, अपने बेटों को जमा किया, उनसे मंत का जिक्र किया, सबके सब झक गए। कौन खुद को ज़बह करवाना चाहता? आखिर हजरत अब्दुल्ला बोले, अबा जान अब मुझे ज़बह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी हजरत अब्दुल मुत्तलब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कर इंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर करार डाला गया। हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, हजरत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़ब्ह करने के लिए नीचे लटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लटाया, अब्बास जब्त न रहा, फौरा आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। हजरत अब्बास ने जैसे ही अपने भाई को खींचा, इस वक्त ये खुद भी बहुत छोटे थे, बाप ने अब्दुल्ला को अपनी तरफ खींचा। तानी में हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आए। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनो मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, अब इस तरह बेटे को ज़ब्ह न करें, उसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फदिया दे दे। अब सवाल ये था कि फदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक टुकड़े पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकली तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची निकली तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए, फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके बढ़ाते जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने ऐसा ही किया। 10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहां तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी कबूल कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उन ऊंटों को खाया। हजरत अब्दुल मुत्तलब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। इसके बाद यह तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गविया कानून बन गया कि आदमी का फदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जिक्र या तो अपने उस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दरस्त है, और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बीह हूँ, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश में सबसे ज़्यादा हुसैन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की मानंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थी, मगर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हज़रत बीबी अमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। हज़रत अमना बिन्त वहब बन अब्दुल मुन्नाफ बन ज़हरा। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबे के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्की इब्न नौफल की बहन थी। वर्का इब्न नौफल कुरैश के एक बहुत बड़े आलम थे। वर्का इब्न नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के उखरी नबी का ज़ुहूर होने वाला है, और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने हज़रत अब्दुल्ला को देखा, फौरा उसके ज़हन में ये बात आई। उसने सोचा, हो न हो ये वही शख्स है जो पैदा होने वाले आखिरी नबी के वालिद होंगे। उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितनी तुम्हारी जान के बदले ज़ब्ह किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, न उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाज़त इदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हज़रत अमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। अब कुरैश की औरतों में नस्ब और मकाम के एतबार से अफजल थी। हज़रत अमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आ गई। अब फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स यानी एक फरिश्ता शक्ल इंसानी में
या उस वक्त में जागने और सोने की दरमियानी कैफियत में थी। आम तौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जा सकता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की मां बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर इस वक्त या जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा इसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शिर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की मां बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है और आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे में नूर चमकता था। शादी के बाद वो हज़रत अम्ना रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे में आ गया। हाकिम ने यह रवायत बयान की है कि सहाबा कराम रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मैं अपने बाप अब्राहीम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शकम में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हजरत अम्ना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, मेरे उस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान मजीद फरकान हमीद में मौजूद है और यूं अरशाद फरमाया गया और भी काबिल जिक्र है, जबकि ईसा इब्न मरीम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल में तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल होने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उधर अब की पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। साबिका कतब में अब की नबूत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि अब के वालिद का इंतकाल अब की विलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तिजारती काफले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफला मदीना मनूरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपनी ननियाल यानी बनु नजार के यहाँ ठहरे। उनकी वालदा बनु नजार से थी। 1 माह तक बीमार रहे और फिर वसाल फरमा गए। उन्हें वहां ही दफन कर दिया गया।